دوالی کی جو بنی عباس خاندان کا دوسرا خلیفہ، پہلا تھا ابو العباس صفا اور دوسرا تھا منصور دوالی کی. اور یہ بات آپ کے ذہنوں میں ہوگی، آپ مستحضر اس بات پر. یہی ملعون ہے جس نے اسی مظلوم امام چھٹے امام کو زہر دے کے شہید کیا. اس کا دربار لگا. سائل کا سوال، تمہارا قرآن کبھی دعویٰ کرتا ہے میرے اندر محکم بھی ہے متشابہ، کبھی دعویٰ کرتا ہے کہ سارا قرآن محکم، کبھی قرآن دعویٰ کرتا ہے سارا قرآن متشابہ. اگر اس میں اختلاف نہیں تو یہ اختلافی آیات آئی کیوں؟ خلیفہ نے علماء کی طرف دیکھا، علماء نے سائل کے سوال کو دیکھا، سائل کو دیکھا، کہا سرکار ہمیں 24 گھنٹے کی مہلت دے. بسم اللہ بسم اللہ. اگر قرآن ان پہ نازل ہوا ہوتا 24 گھنٹے کی مہلت. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. عیسائی سکالر نے کہا ٹھیک 24 گھنٹے کی مہلت. گئے 24 گھنٹے کے بعد ہے پتہ کیا جواب آیا ہے؟ کہا چونکہ یہ بدبخت ہم مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کرنا چاہتا ہے لہذا ہم بادشاہ سے التجا کرتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیں. میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں اس کو قتل کر دیا جائے. عیسائی نے جب علماء کے زبان سے اپنے قتل کا فتویٰ سنا پھر کھڑا ہوا، کہا میں جانتا ہوں اتنی تاریخ تم اپنی نہیں جانتے جتنی میں تمہاری جانتا ہوں. انہی فتووں سے تم نے بڑی بڑی ہستیوں کو قتل کیا. میں کس بات کے مولی ہوں؟ مجھے موت منظور ہے، قتل منظور ہے، لیکن میری یہ بات نوٹ کر لو کہ میں مرنے کے بعد بھی یہ اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ یہ قرآن پھر تمہارے خدا کا کلام نہیں کسی اور کا کلام. یہ قرآن خدا کا کلام نہیں ہے. اگر خدا کا کلام ہوتا تو تم علماء جو اپنے آپ کو وارث انبیاء سمجھتے ہو، یہی حدیث پڑھی جاتی ہے نا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء انبیاء کے وارث. اگر تم انبیاء کے وارث ہوتے تو اپنے نبی کے وارث ہوتے تو مجھ پر قتل کے فتوے نہ لگاتے، دلیل کے ساتھ مجھے جواب دیتے. بادشاہ پریشان، پیشانی پہ پسینہ نمودار ہوا کہ یہ کیا کہہ کے جا رہا کہ اگر مجھے مار دو تو میں یہ اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ پھر یہ تمہارا قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے کسی غیر خدا کا کلام. بادشاہ کی پیشانی جھکی. کسی نے کان میں کہا بادشاہ نہ گھبرا، اگرچہ نبی موجود نہیں نبی کا وارث تو رسول موجود نہیں، جزو رسول تو موجود. کہا جلدی بلاؤ جلدی بلاؤ. جیسے ہی آپ کے اور میرے مولا کو بلایا گیا اور حضرت دربار میں داخل ہوئے، بادشاہ کی نگاہ پڑی، کہا سریجن سریجن یبن الزہرا انی اخرق ایقاد من الموت. جلدی آئیے فرزند رسول، موت میرے قریب ہے، میں مرنے والا ہوں، مجھے بچائیے. میں کہوں گا منصور یہ تیرا قصور نہیں. میں نے بھی کہا تھا اگر علی مدد نہ کرتے تو میں حکمت کی ہر بات سائل اس در سے پوچھتا ہے. حکمت کی ہر بات سائل اس در سے پوچھتا ہے. میں کیا زمانہ حیدر سے پوچھتا ہے. میں کیا زمانہ حیدر سے پوچھتا ہے. وہ کیسے کر سکے گا مرسل کی جانشینی جو ہر عوامی مسئلہ دختر سے پوچھتا ہے. تو حقیقتوں سے ہے بے خبر، تو حقیقتوں سے ہے بے خبر، نہ علی کو دیکھ مجاز میں. علی وہ راز حق ہے جو نہ آ سکے تیری عقل شعبۃ آواز میں. تیرے کعبہ پہ جو جھکے جبی تجھے کعبہ کی یہ کہے زمین. تیرے دل میں حب علی نہیں تجھے کیا ملے گا نماز میں. شاعری کے معاملے میں میں خود بڑا بے ذوقہ ہوں، مجھے کوئی شعر یاد نہیں ہوتا. برحال ان برادران کے اس کلام نے مجھے بھی ایک شعر یاد کرا دیا کہ محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام. محکم کہیں کہیں
मुतशाबे तेरा कलाम, या रब अजीब राज ये कुरान में भर दिया। अब तक मुफस्सिरों का उलझना दलील है, दुनिया को अहले बैत का मोहताज। थक गया, जरा खुल के बात। नारे तशरीफ ले आए बारिश कुरान। ईसाई शकालर नहीं जानता था ये कौन। इमाम तशरीफ फरमाओ, मुख्तसर कर रहा हूं क्योंकि मैं वक्त काफी ले चुका। इमाम तशरीफ फरमाओ। ईसाई ने कहा इनसे बात करनी है। बादशाह ने कहा इनसे पूछ। ईसाई मुतवज्जे हुआ आपके इमाम की तरफ, अर्ज करता है ये आने वाले सब आलिम समझता था, ये आने वाले आलिम अताजुल्ली अन असअलुका आयत मिनल कुरान, इजाजत है कि तुझसे मैं कुरान की आयत के बारे में पूछूं। इमाम ने जवाब दिया सल मा शेता, जो जी चाहता है मुझसे। बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह, दादा ने ऐलान किया था सलूनी सलूनी पूछ लो जो चाहते हो मुझसे पूछ लो। बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह। मुझे मफकूद पाओ। पोते ने दादा के एहतराम में वो लफ्ज नहीं कहे, मतलब वही है सल मां शेता, जो जी चाहता है पूछ लो। जमीन की बातें पूछ मैं बताऊंगा, आसमान के मसले पूछ मैं बताऊंगा, कुरान की बातें पूछ मैं बताऊंगा। अगर तू अपनी इंजील को पेश करेगा इंजील बताऊंगा, तौरात को पेश करेगा तौरात को से बताऊंगा, ज़बूर से मसला पूछोगे ज़बूर से मसला बयान करूंगा, कुरान से मसला दरियाफ्त करोगे कुरान से बयान करूंगा। और अली का ये फर्जंद हर किताब से ऐसा मसला बयान करेगा कि खुद किताब पुकार पुकार के कहेगी कि सादिक इमाम तूने मसला बयान करने का हक अदा कर। तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह, हैदरी, सलमा से दबोदी चाहता है। कहते हैं ये कुरान पर आपका ईमान है, फरमाया यही कुरान पर ईमान तुम मनवाने के लिए हम दुनिया में आए हैं। हम दुनिया से मनवाना चाहते हैं कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है। क्या अच्छा पढ़ूं आयत? कहा पढ़ो। उसने वही आयत पढ़ी कि ये कुरान जो नाज़िल हुआ है इसमें कुछ आयात मुहकम कुछ मुतशाबे। इमाम ने फरमाया मुकम्मल ईमान। कहा और पढ़ूं? फरमाया पढ़ो। इसने सूरह हूद की आयत पढ़ी कि कुरान वो है जिसमें सारा का सारे कुरान की आयात मुतशाबे आयात, फिर सूरह मुहकम आयात, फिर सूरह ज़ुमर की आयत पढ़ी कि कुरान कहता है कि मेरे अंदर सारी मुहकम आयात है, ये इख्तिलाफ नहीं। इमाम फरमाते हैं नहीं, ये तेरे ज़हन की खराबी का नहीं, कुरान में इख्तिलाफ नहीं। किबला ये अली का खून बोल रहा है और मेरा अकीदा यही है ना, मुझे नबी ने यही अकीदा दिया ना कि अव्वलुना मोहम्मद आखिरुना मोहम्मद औसतुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। और यहाँ मैं बात कहता हुआ चलूं, याद रखिए मेरे अजीजों, इमाम अपने दौर में वो काम नहीं करता जो नबी ने किया था। मुश्किल बात है आपके ज़हनों पे बोझ न बन जाए, बार न बन जाए। इमाम वो काम नहीं करता जो नबी ने किया था। इमाम वो अमल नहीं करता जो नबी ने किया था। इमाम वो काम करता है कि अगर नबी होते जमाने में तो नबी भी वही काम करते जो आज सादिक कर रहा है। हर दौर के तकाज़े अलग होते, हर दौर के हालात अलग होते। इमाम उसी दौर के मुताबिक अपने नाना पैगंबर की सीरत तैयबा को पेश नजर रखते हुए वो अमल करते हैं जो खुदा भी चाहते हैं, खुदा के रसूल भी चाहते हैं। ईसाई सकालर के मुकाबले अली का लहू बोल रहा, कहा कुरान की आयत में इख्तिलाफ नहीं है, ये तेरे सब ज़हन की तकरीब है। वो कैसे? कहा कुरान कहता है मुझे मुहकम भी मुतशाबे भी है। कुरान कहता है मेरे अंदर मुहकम आयात है, कुरान कहता है मेरे अंदर मुतशाबे आयात है। याद रख जो इंसान मोमिन है, साहिब ईमान है, उसके लिए कुछ कुरान की आयात मुहकम है, कुछ मुतशाबे।
मोमिनों के लिए इमाम फरमाए कुछ कुरान की आयात मुहकम है, कुछ मुतशाबे है। जो मुनकरे कुरान है उसके लिए सारा कुरान मुतशाबे है। जो मुनकरे कुरान है उसके लिए सारा कुरान मुतशाबे है। और वो जो वारसे कुरान बन के आया है उसके लिए कोई मुतशाबे नहीं, सारा कुरान मुहकम है। मौला आपके जवाब का समझ आ गए। फिर अल्लाह ने अपने कुरान में अपने कलाम में मुहकम आयात के साथ साथ मुतशाबे आयात क्यों रखी? फरमाया कि ए बंदा खुदा याद रख, अगर खुदा इन मुहकम आयात के साथ मुतशाबे आयात न रखता तो दुनिया वारस से कुरान को छोड़कर कुरान पे आ जाती। अल्लाह ने मुतशाबे आयात रख के बताया कि उस वक्त तक कुरान तुम्हारी समझ में नहीं आएगा जब तक कि कुरान के साथ साथ वारस से कुरान के दरवाजे पर खड़ा हुआ फर्जंद रसूल का शुक्रिया अदा किया और ये कलमा का अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्नका वसीय्यु रसूलिल्लाह हक्कन हक्का। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह वहदहु ला शरीक, उसका कोई शरीक नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि आपके जद्दे अमजद अल्लाह के बरहक नबी और रसूल थे और मैं गवाही देता हूँ कि आप भी अपने नबी के सच्चे नायब हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये सारी समय खराशी करने का मकसद ये था कि अर्ज किया जाए कि कुरान को अपने इल्म के बलबोते पर नहीं, अपनी फहम व फरासत के बलबोते पर नहीं कि मैं बड़ा आलिम हूँ, मैं अरबी को बड़ी दस्तरस रखता हूँ, मैं लुगात अरबी के बड़ी समझ रखता हूँ, इस कुरान को खुद समझ लूंगा, खुद इसको इसका नतीजा निकाल लूंगा, इसके माने तक पहुंच जाऊंगा। पैगंबर की हदीस मैंने बैठते ही अर्ज की कि हज़रत ने फरमाया खबरदार मन फस्सर अल कुरान बिरायही फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जिसने कुरान को अपनी राय से तफसीर करना शुरू की उसका ठिकाना जहन्नम। बेशक बेशक। खुद कुरान ने कहा युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। ये कुरान जो लिन्नास साहिबान ईमान साहिबान तक़वा की हिदायत के लिए आया है, कितने ऐसे अफराद हैं जो इस कुरान को पढ़ के हिदायत पाते हैं, कितने ऐसे जो कुरान पढ़ते हैं फिर गुमराही में डूब जाते हैं। और किसी ने सच कहा था जिन्हें वो डूबना वो डूब जाते हैं सफीनों में, डूब जाते हैं। बस मैं काफी आपको ज़हमत दी, अपने गुफ्तगू को यहीं पर रोक रहा हूँ। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो आगे बात करेंगे। कुरान और वारसाने कुरान मेरा उन्वान ज़हनों में रहे। और ये वारिस कुरान ही था जिसने कुरान को बचाने के लिए नाना का शहर छोड़ा।